A very warm welcome to all my dear HS first year students. Welcome to Logic and Philosophy online classes of Presidency Junior College. Well, first of all, I would like to congratulate all my dear students कि आप लोग you are promoted to HS first year. And I would like to congratulate you as well as your parents also that you have chosen the best college of entire Barak Valley, that is the Presidency Junior College, for your further education. Presidency Junior College is one of the best college now in the present days in the entire Barak Valley. Okay, and we, the team of Presidency Junior College, welcome all of you to our esteemed institution, that is the Presidency Junior College. Okay. सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ आप लोगों को. माय नेम इज डॉक्टर झूमा देव एंड आई एम फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ लॉजिक एंड फिलोसफी, प्रेसिडेंसी जूनियर कॉलेज. ठीक है. एंड आई एंश्योर यू कि ये जो 2 साल आप लोग हमारे साथ रहेंगे, द एंटायर जर्नी विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी नॉलेजेबल. ओके, so we will learn together and we will grow together in this entire journey of 2 years of your HS. Okay, so let us start with our today's class. सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि I know that logic and philosophy is a very new subject for all of you. आप लोगों के लिए ये बहुत ही new subject है. But please don't panic. It's a very interesting subject, very easy subject based on concept. Conceptual subject है ये, बहुत ही easy subject है. Okay, and very interesting also and very very important subject. आप लोग easily बहुत सारे competitive exams जिसमें logic paper होता है easily crack कर सकते हैं अगर आप लोग logic as an subject opt करें तो. ओके, एंड बहुत ही जल्दी अपना गोल अचीव कर सकते हैं इफ यू गो फॉर लॉजिक एंड फिलोसफी. ओके, सो वंस अगेन अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू. सो लेट अस स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट क्लास. टुडे इज आवर फर्स्ट क्लास. तो आज मैं ज्यादा प्रेशराइज आप लोगों को नहीं करूंगी. मैं सिर्फ आज आप लोगों को सिलेबस समझाऊंगी, सिलेबस ऑफ एचएस फर्स्ट ईयर लॉजिक एंड फिलोसफी, and I'll give you a little bit of introduction to the subject. ठीक है? So this is the entire syllabus of logic and philosophy. Okay? Though there are 8 units and there are some chapters under these units, but the chapters are very short and very interesting. Logic is a very scoring subject also. Okay, अगर आप लोग थोड़ा सा हार्ड वर्क करेंगे, you can easily score very good marks in logic. Okay, because it is conceptual. इसके notes ज़्यादा लंबे नहीं होते हैं. Very short point to point notes are there and it is somewhat similar to maths. जैसे maths में आप लोगों का अगर आंसर करेक्ट है then they cannot cut even a single mark there. Similarly in logic अगर आप लोगों का आंसर करेक्ट है then they have to give the full marks. ठीक है? So let us start with the syllabus of logic and philosophy. Okay, so logic and philosophy का जो syllabus है it is divided into 2 parts. 2 parts में divide किया गया है. एक है logic portion और एक है philosophy portion. So there are 2 parts. ठीक है? Now जो logic portion है इसके अंदर there are only 4 units. सिर्फ 4 unit आप लोगों को पढ़ना है under logic. And under philosophy portion भी आप लोगों को सिर्फ 4 यूनिट पढ़ना है. Only 4 units under philosophy portion also. ठीक है? Now जो logic है उसके अंदर जो first unit है unit 1. Unit 1 के अंदर there is only one chapter that is logic. Okay, the first chapter, the introductory chapter, that is logic, जिसमें आप लोगों को what is logic, what are the uses of logic, ये सब समझाया जाएगा. Under unit 2, there are terms, proposition, transformation of ordinary sentence to logical proposition, distribution of term, and modern classification of proposition. So these are the chapters which come under unit 2. Under unit 3, inference and categorical syllogism, and under unit 4, that is symbolic logic. Only this much for logic portion. Now let us come to philosophy portion. This is philosophy.
अंडर फिलोसफी जो यूनिट 5 है उसके अंदर चैप्टर 1 फिलोसफी है, जिसमें आप लोगों को समझाया जाएगा व्हाट इज फिलोसफी, philosophy has been derived from which word, what is the meaning of philosophy, that ये सारे चीजें आप लोगों को समझाया जाएगा in the first chapter. Now in the next unit comes Indian philosophy. Okay, the metaphysics and epistemology of Indian philosophy will be explained in this chapter, that is Indian philosophy. See, only one chapter. Now here only 2 chapters, that is theories of pramana and theories of knowledge and pramana. These are the 2 chapters come under unit 7, and under unit 8 again 2 chapters, that is realism and idealism. Okay, so this is the entire syllabus of class 11 or HS first year. ठीक है, the syllabus is divided into 2 parts, as I have already said you, that is logic and philosophy, and the chapters are very short and very interesting. Logic is one of the most scoring subject, and it is a very interesting subject. So let us start with a little bit of introduction about what is logic. Logic क्या है? Now if we define logic, logic is the science of thought as expressed in language. Okay, so दुनिया में 2 चीजें हैं जिसके बिना we human beings cannot survive. Okay, can anyone guess which are the 2 things without which we cannot survive? हम लोग 24 hours ये 2 चीजें करते हैं. 24 hours. Okay, can anyone guess? Okay, let me tell you. हम लोग 24 hours 2 चीजें करते हैं. One is breathing. Right, without breathing we cannot survive. हम लोग नहीं जी सकते if we don't breathe. And the second is thinking. Okay, now you may ask me, मैम हम लोग जब सोते हैं तब भी हम लोग क्या सोचते हैं? Yes, हम लोग जब सोते हैं तब भी हम लोग सोचते हैं, क्योंकि अगर हम लोग सोचते नहीं तो हम लोग ड्रीम्स कैसे देखते? Right, our brain functions when we are sleeping also. That's why we see dreams. Okay, so thinking also is going on 24 hours in our mind. Our brain functions 24 hours. Okay, so ये जो thinking है, this is logic. Okay, this is logic. Now what is logic? Logic is the science of thought expressed in language. Once again, logic is the science of thought expressed in language. लॉजिक जो है इट इज अ साइंस ऑफ थिंकिंग, सोचने का साइंस. बट सिर्फ सोच के अगर हम लोग अपने दिमाग में रख देंगे तो फिर उसका क्या फायदा? उसका कोई फायदा नहीं है. राइट, सो वेन एवर वी थिंक, आवर ब्रेन इज द रिमोट कंट्रोल टू आवर बॉडी. हमारा ब्रेन जो है वो सोचता है और वो इंस्ट्रक्ट करता है हमारे बॉडी को टू डू द वर्क, टू डू द जॉब. ओके, सो लॉजिक इज द सेम ओनली. लॉजिक इज द साइंस ऑफ थॉट एक्सप्रेस्ड इन लैंग्वेज. सो अगर जो हम लोग सोचे उसको हम लोग एक्सप्रेस करें तब भी हम लोग उसके ऊपर काम कर सकते हैं और लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं. ठीक है, सो वी शुड ऑलवेज थिंक लॉजिकली. हम लोग सुपरस्टिशंस के ऊपर, प्रिजुडिस के ऊपर हम लोगों को बिलीव करके अगर हम लोग चलेंगे तो फिर हम लोग कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ेंगे. सो हम लोगों को हर चीज, हर डिसीजन इन लाइफ, हर प्रॉब्लम को लॉजिकली सॉल्व करना चाहिए. हर डिसीजन को लॉजिकली लेना चाहिए. नाउ व्हाट इज this kind of thinking? This kind of thinking is the thinking is the systematic way of thinking. Okay, जो हमें easily अपना goal score करना सिखाए. So once again let me define what is logic. Logic is the science of thought expressed in लैंग्वेज. क्योंकि अगर हम लोग सोच के उसको लैंग्वेज में एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो फिर हम लोग उस चीज को काम पे नहीं लगा सकते हैं और हम लोग प्रोग्रेस नहीं कर सकते. नाउ ये जो थॉट है, लॉजिक इज द साइंस ऑफ थॉट, आई से. राइट, नाउ व्हाट इज दिस थॉट? ये थॉट क्या है? हम सबको पता है, राइट, व्हाट इज थॉट. सो लॉजिक विल मेक यू थिंक ऑन द थिंग्स विच none have thought before. आप लोगों ने कभी भी ये सब सोचा नहीं होगा जो लॉजिक आप लोगों को सोचने पर मजबूर कर देगा. नाउ साइंस ऑफ थॉट, मैंने क्या पूछा? व्हाट इज थॉट?
नाउ कभी सोचा है आपने कि थॉट क्या है? व्हाट इज थॉट? व्हाट इज थिंकिंग? व्हाट इज थॉट और व्हाट इज थिंकिंग? ओके, थॉट और थिंकिंग इज द एक्ट ऑफ माइंड. Thought or thinking is the act of mind. Okay, it is the action of mind through which we obtain knowledge. It is the action of mind through which we obtain knowledge. Clear है ना? यही है ना? So अब तक हम लोगों ने 2 पॉइंट पढ़ा. What is logic and what is thought? So logic is the science of thought expressed in language, and thought is the act of mind through which we obtain knowledge. Now what is knowledge? अगर मैं पूछूं आप लोगों को, थ्रू थॉट यू ऑब्टेन नॉलेज, राइट? देन व्हाट इज नॉलेज? नॉलेज इज द सिस्टमैटिक फॉर्म ऑफ आइडियाज स्टोर्ड इन योर माइंड. वंस अगेन, नॉलेज इज द सिस्टमैटिक फॉर्म्स ऑफ आइडियाज स्टोर्ड इन योर माइंड. सो जो भी नॉलेज है वो सिस्टमैटिकली हमारे माइंड में स्टोर किया गया है. ओके, और जब भी हम लोगों को उस चीज का जरूरत पड़ता है हम लोग अपने माइंड से वो रिकलेक्ट कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ रेड रोज. जब भी मैं बोलूं अ रेड रोज, क्या होता है? एक रेड रोज का रिफ्लेक्शन आपके माइंड में रिफ्लेक्ट होता है. क्यों रिफ्लेक्ट होता है? बिकॉज द आइडिया ऑफ रेड रोज एज अ नॉलेज इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन योर माइंड. आपके माइंड में रेड रोज का जो आइडिया है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है. ओके, सो जब भी मैं अटर करूं रेड रोज, इट विल ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट इन योर माइंड. सो दैट इज कॉल्ड द सिस्टमैटिक फॉर्म ऑफ आइडियाज. सो नॉलेज इज द सिस्टमैटिक फॉर्म ऑफ आइडियाज स्टोर्ड इन योर माइंड. ठीक है. नाउ ये जो ह्यूमन माइंड है, राइट, ह्यूमन माइंड इज फुल ऑफ डाउट्स. ओके, जो ह्यूमन माइंड है इट इज फुल ऑफ डाउट्स. हमारा माइंड हमेशा डाउट से फुल रहता है. ओके, एंड वो डाउट हम लोग कैसे क्लियर करते हैं? हम लोग क्लियर करते हैं रीजनिंग से. ओके, रीजनिंग से. सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. रीजनिंग इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉजिक. रीजनिंग इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉजिक. नाउ फॉर एग्जाम्पल, what is reasoning? Reasoning is the process of passing from something known to something unknown. Once again, reasoning is the process of passing from something known to something unknown. कुछ चीज को जानने के लिए, इस दुनिया में कोई भी चीज को जानने के लिए उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज हमें पहले से होना जरूरी है. तब भी हम लोग उसको लेके प्रोसीड कर सकते हैं. ओके, लेट मी एक्सप्लेन दिस विद एन एग्जाम्पल. नाउ सपोज लॉजिक एंड फिलोसफी का बुक है हमारे पास. ठीक है. सो जैसे आप सबको पता है इट्स ए न्यू सब्जेक्ट फॉर यू. सो अगर मैं आप लोगों को लॉजिक एंड फिलोसफी का एक बुक दिखाऊं, ठीक है, सो उस बुक के ऊपर लिखा है लॉजिक एंड फिलोसफी. ओके, द कलर ऑफ द बुक इज से ग्रीन. ओके, एंड द नेम ऑफ द बुक इज लॉजिक एंड फिलोसफी HS फर्स्ट ईयर. ठीक है, ये बुक मैंने आप लोगों को दिखाया सपोज. सो फार आप लोगों को क्या पता है? आप लोगों को पता है द कलर ऑफ द बुक, द नेम ऑफ द बुक, और कुछ भी नहीं पता, राइट? सो दिस इज नोन एज द नोन थिंग. ये है नोन थिंग. उस नोन से हम लोग अननोन तक कैसे पहुंचेंगे? व्हाट इज अननोन हियर? अननोन इज द कंटेंट ऑफ द बुक. बुक का अंदर में क्या है वो हमें नहीं पता. द कंटेंट हमें नहीं पता. सो दैट इज अननोन टू अस. सो फ्रॉम द नोन टू द अननोन हम लोग कैसे पहुंचेंगे? हम लोग वो बुक पढ़ के पहुंचेंगे, राइट? वंस यू स्टडिंग दैट बुक, देन ओनली रीडिंग दैट बुक, देन ओनली यू कैन रीच टू द अननोन. दैट इज द कंटेंट ऑफ द बुक. ओके, सो सिमिलरली कोई भी एग्जाम्पल आप लोग सोचो, नॉलेज पाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, दैट इज रीजनिंग. दैट इज पासिंग फ्रॉम समथिंग नोन टू समथिंग अननोन. ओके, और सिमिलरली जैसे मैंने बोला, ह्यूमन माइंड इज फुल ऑफ डाउट्स, फुल ऑफ आइडियाज. और एक एग्जाम्पल भी देती हूँ. सपोज आप लोग कहीं जा रहे हैं और आप लोगों ने आपके किसी फ्रेंड को देख लिया, वही रास्ते में किसी फ्रेंड को देख लिया, तो सबसे पहले क्या क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि ये कहाँ जा रहा है, राइट? दिस इज वन क्वेश्चन. यू आर इन डाउट, दैट्स व्हाई यू आर आस्किंग ये कहाँ जा रहा है. वन क्वेश्चन. ओके,
Now when that person, your friend, will come nearer, first question you will ask, where are you going? First question. Okay, so he suppose he said that I am going to bank. Okay, तो ये पहला डाउट आप लोगों का क्लियर हुआ, दैट द पर्सन इज गोइंग टू द बैंक, और ये थोड़ा सा नॉलेज आप लोगों को हुआ, दैट इज द नोन थिंग, नॉलेज हुआ कि वो बैंक जा रहा है। इमीडिएटली आपके दिमाग में दूसरा क्वेश्चन आएगा, बैंक, व्हाई बैंक? ओके, सेकंड क्वेश्चन, देन ही विल से कि मुझे एक इंश्योरेंस कराना है, सपोज बैंक में एक इंश्योरेंस कराना है। देन द थर्ड क्वेश्चन विल अराइज, इंश्योरेंस, व्हाई इंश्योरेंस? Then he will say that I want to secure my future. That's why I am doing one insurance. Okay. Then the fourth question arises. Okay. Then which insurance you will do? Okay. So what are its details? How to do it? Can I also do it? So what are the benefits of the insurance? So see, so many questions are coming out. What are these questions? These are the reasoning we are doing. टू पास फ्रॉम द नोन टू द अननोन। जितना हम लोग जानते हैं, ओके, उतना ही हम लोगों का इच्छा होता है कि हम लोग और जाने, एंड फ्रॉम दिस नोन वी कीप ऑन गोइंग टू द अननोन विद द हेल्प ऑफ रीजनिंग। अंडरस्टैंड? हैव आई मेक माई सेल्फ क्लियर? सो रीजनिंग इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग फ्रॉम नोन टू अननोन। रीजनिंग को हम लोग तर्क भी बोल सकते हैं, तर्क। ओके, सो वी कीप ऑन doubting, our mind is full of doubts and we keep on asking question, और तब तक हम लोग क्वेश्चन पूछते रहते हैं जब तक कि हम लोग सेटिस्फाइड ना हो जाए उसके आंसर से। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट रीजनिंग, एंड रीजनिंग इज द मेन सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉजिक। तो आज हम लोगों ने कितने पॉइंट सीखा? सबसे पहला पॉइंट, व्हाट इज लॉजिक? लॉजिक इज द साइंस ऑफ थॉट एक्सप्रेस्ड इन लैंग्वेज। दूसरा पॉइंट हम लोगों ने सीखा, व्हाट इज थॉट? So thought is the act of mind through which we obtain knowledge. तीसरा पॉइंट हम लोगों ने सीखा, what is knowledge? So knowledge is the systematic form of ideas stored in our mind. और चौथा पॉइंट हम लोगों ने सीखा, knowledge is obtained through reasoning, and reasoning is the subject matter of logic. And what is reasoning? Reasoning is the process of passing from something known to something unknown. Okay, clear? So once again, a very warm welcome to all of you. Welcome to our college, the Presidency Junior College. I hope कि आप लोग अच्छे से पढ़ोगे, and after 2 years you will come out with flying colors. Okay, so this much for today. Have a nice day all of you.